हैव यू एवर ओपन इंस्टाग्राम जस्ट फॉर 5 minutes एंड उन 5 मिनटों में ही आपने तरह तरह की पोस्ट देख ली है. Someone has announced their engagement, someone has bought a new house, someone landed their dream job, someone is, traveling around the world or someone is relocating. या फिर किसी का YouTube चैनल overnight bloom कर गया. और ये सब देखते वक्त आपके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, which is, what is wrong with me? मेरी बारी क्यों नहीं आ रही? If you've ever felt like that, then you found yourself at the right place and this video is just for you. Because आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं that will completely transform the entire perspective that you have towards life. And we will also be talking about that one thing which is silently stealing your happiness. And that is comparison. Because comparison truly is the thief of joy. By the end of this video, I want you to stop feeling behind in life and start feeling so much more powerful. Social media sells to us all. The one thing that not many people क्या hardly anyone will tell you is that social media ना हमें reality नहीं बस लोगों की life की highlights दिखाती है. And just imagine आप एक random दिन में दोपहर में रात को just before sleeping on a random day at a very random time in your life, you are comparing what your life looks like at that moment to someone's biggest achievement of the year or even the biggest achievement of their life. क्योंकि social media हमें सिर्फ positives दिखाती है. We see money but not see the years of struggle that person must have gone through. We see happiness but don't know the anxiety they might be facing behind closed doors. We see the celebrations but don't know the challenges that they might have faced. We just see 10 minutes, 30 minutes, max to max 1 hour of a person's entire life और assume कर लेते हैं. In fact, Instagram में तो 10 सेकंड में assume कर लेते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है और हमारी कितनी नॉट सो परफेक्ट है. Somehow in social media highlights, stories, even reels को देख के हम कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी लाइफ तो कितनी कंप्लीट और परफेक्ट है और हमारी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट है. Everyone's timelines, deadlines for life are different. और हम सबको जो मिलना है ना लाइफ में वो मिल के ही रहेगा. बस हर किसी का टाइम, स्पेस और प्लेस बहुत अलग होगा. Jealousy isn't the enemy. Controversial opinion, but I need to talk about it because हर जगह ना लोगों को बहुत गिल्टी और नेगेटिव लगता है ये बोलना कि oh we felt jealous या फिर jealousy को एक नेगेटिव इमोशन की तरह पेंट कर दिया जाता है. But if you ask me, it only makes us human. जेलिसी का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं अपने आप के साथ या कंपैरिजन कर रहे हैं और मन ही मन में विशिंग बैड थिंग्स फॉर देम. नो. Sometimes when we get jealous, you need to ask yourself at a deeper level. You need to understand that emotion which is, coming up within you that why did this make me jealous? What am I jealous of? उनके career से, उनकी looks से, उनकी appearance से, उनके relationship से, उनके finances से, what exactly is making me jealous? In fact, guys, if I tell you, if I talk to you very honestly, if we look at someone and we feel jealousy within our hearts, then that means कि हमारे अंदर की कोई deep desire है जो उनको देख के trigger हो रही है. That means वो कुछ ऐसा कर रहे हैं. It is never about the person. It is about what they are doing or what they have in life, because whatever it is that they are doing or whatever it is that they have in their life is what we also deeply believe we can get. And sometimes looking at them is a reminder of something that maybe we're not working really hard towards achieving, right? So the next time when you feel jealous towards someone, ask yourself, why am I feeling jealous and am I working on myself or in my life enough towards achieving that thing? Because sometimes that's the exact perspective shift you need in your life. जेलिसी का ये मतलब नहीं है कि आप कह रहे हो कि वो आपसे बेटर और इसलिए आपको बुरा फील हो रहा है. नहीं, कभी कभी जेलिसी आपको वो पर्सपेक्टिव देती है, वो माइंडसेट शिफ्ट देती है, वो विजन देती है जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत है. दैट डिजायर विद इन यू, इट गेट्स ट्रिगर्ड बट इन अ पॉजिटिव वे व्हिच मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्डर एंड फास्टर टुवर्ड्स अचीविंग whatever it is that you wish to achieve. Your journey was never meant to look like this, and please guys understand this and keep this in your mind, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी all of us are guilty of doing that. We have looked at someone else's life and compared ourselves with them कि oh their life is so much better, they have achieved so much, इनकी life में क्या ही stress होगा. I feel it is so much more stressful or a difficult emotion to deal with if you've achieved everything and yet you feel emptiness within, because तब तो आप किसी चीज़ पे blame भी नहीं डाल सकते ना. Everything has worked out for you. Now let's talk about this scenario. दो लोग हैं, एक बंदा लंदन जा रहा है और एक टोक्यो जा रहा है. दोनों की फ्लाइट्स ऑब्वियसली सेपरेटली बोर्ड हो रही है. अब इमेजिन करो जो इंसान लंदन जा रहा है, क्या वो पैनिक करने लग जाएगा कि ओ नो टोक्यो वाले की तो फ्लाइट लैंड होने लगी है? नो ना. इनफैक्ट आप में से काफी लोग तो ये कह रहे होंगे यार इग्नोर, इस बात की कोई सेंस ही नहीं बन रही क्योंकि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डेस्टिनेशंस, डिफरेंट एयरलाइंस, डिफरेंट बोर्डिंग एंड लैंडिंग टाइम्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और पर्पस ऑफ द ट्रिप.
यही तो पॉइंट है ना गाइस. Two different people, two different goals, two different lives, and two different motivations and aspirations. Some people are meant to become successful at business. Some people are meant to become amazing parents. Some people are meant to bring change in the world. Some people are meant to become artists. Some people are meant to become healers. How can you compare one life to another? How can you compare one life of yours to somebody else's life? जब सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें लिखी हैं तो कंपैरिजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना यार. कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट गिफ्टेड. अब आधे से ज्यादा लोगों को तो यही लगता है कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट पीपल आर बॉर्न विद. बट लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद, इट इज समथिंग दैट यू बिल्ड. और पता है कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होता है? जब आप किसी चीज पे एक्शन ले लेते हो. क्योंकि पहले तो हर किसी को डर, नर्वसनेस या एंजाइटी फील होती है. अभी राइट नाउ यू माइट लुक एट समवन्स लाइफ और समवन्स पर्सनालिटी एंड बी लाइक, नहीं आई डोंट बिलीव इसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, या ये भी कभी डरा होगा. देन लेट मी टेल यू गाइज, डर सबको लगता है. तो जिन लोगों को आप आज एडमायर कर रहे हो या जो आपके लिए आज इंस्पिरेशन है, उनको भी कभी ना कभी डर लगा था और बहुत ज्यादा डर लगा था. बट दे गॉट आउट ऑफ दैट नर्वसनेस, दैट एंजाइटी एंड दे लेट कॉन्फिडेंस विन दैट फाइट. तो जब कभी आपको डर लग रहा होता है ना और उस डर की वजह से आप चुप हो, तब आपका डर बढ़ता है. पर जब आपको डर लग रहा होता है ना, फिर भी यू गो एंड टेक अ स्टैंड, तब आपका कॉन्फिडेंस जीत रहा होता है. डर और कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट तो दोनों ही करते हैं. डिपेंड इस पे करती है बात कि हम किसको ज्यादा नर्चर कर रहे हैं. अगर हमेशा अपने डर को ही जिताओगे तो लगेगा ना कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं. पर एक बार कॉन्फिडेंस को जिता के तो देखो और फिर बताना मुझे कैसा फील हुआ. स्टॉप मेजरिंग योर लाइफ यूजिंग समवन एल्सेस रूलर. आई थिंक द वन मिस्टेक दैट ऑल ऑफ अस टेंड टू मेक एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स इज दैट we measure our progress और सक्सेस डिपेंडिंग ऑन किसी और की डेफिनेशन सक्सेस की क्या होती है. कभी कभी आपकी वो डेफिनेशन आपके रिलेटिव्स ने दी होगी, कभी कभी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब ने दी होगी, कभी आपके फ्रेंड्स ने दी होगी, या कभी कहीं आपने पढ़ा होगा कि दिस इज सक्सेस. बट आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली कि यार मेरे लिए सक्सेस या प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि हर किसी की सक्सेस और प्रोग्रेस की भी डेफिनेशन डिफरेंट होती है ना यार. For some people, success can be having meaningful relationships. For some people, it can be building an empire. For some people, it can be to just heal themselves. For some people, it can be just to be peaceful. कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए शांति, और कुछ लोगों के लिए बस इतना ही कि वो हमेशा अपनी फैमिली के आसपास रहें. तो जब हम सब एक दूसरे से इतने अलग हैं और हम सबकी प्रोग्रेस और सक्सेस की डेफिनेशंस भी इतनी अलग है, हम कैसे सेम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? अगर लॉजिक लगाओ ना तो ये बात शुरू ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना गलत है. Here's what I want you to remember guys. सबसे पहले तो there is enough in this world for all of us. Just because someone else is getting something does not mean कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी. किसी और का सक्सेस आपके फेलियर की एविडेंस नहीं होता. इनफैक्ट इफ समवन एल्स इज सक्सीडिंग, ये तो हमें ये दिखा के जाता है दैट वी कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल, बिकॉज दैट सक्सेस, दैट प्रोग्रेस इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. So when you look at someone, do not compare yourself and ask, oh, why are they so successful and I am not? In fact, take a moment and ask yourself in that very moment, ask yourself, what is success for me in the version that I am right now in? मेरी लाइफ अभी कैसी है और मेरे लिए अभी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि गाइज वही तो मैटर करता है. एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट वेस्ट दीज ईयर्स बाय कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समवन एल्स, क्योंकि एवरी टाइम यू कंपेयर योर सेल्फ इज लाइक आप अपनी जर्नी में ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ हर रोज एक एक दिन करके डिले कर रहे हो. बस अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि यू आर मेंट टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. तो इफ यू कॉपी समवन एल्स एंड बिकम द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ समवन एल्स, देन व्हाट विल मेक योर स्टोरी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी? If this video resonated with you, then please guys चैनल को सब्सक्राइब करो and follow me on Instagram, because this is your safe space. यहाँ हम हर चीज की बात करते हैं, but always remember that comparison truly is a thief of joy. कमेंट से मुझे बताओ what is that one area in your life जहाँ पे आप अभी अपने आप को constantly दूसरों के साथ compare कर रहे हो, and I am promising you I will help you out. अपना ध्यान रखो and I'll see you guys super soon in the next video. Bye guys.